Welcome to the conversation series titled Reimagining the Future Agenda for a Post COVID Economy. This is a series that has been going on since mid of May, where different civil society organizations, trade union, movement groups, researchers, and all have been coming together to discuss what this crisis, what started as a health crisis, has done to livelihood and economics, and sort of exposed a lot of flaws in policies and also development models, and what is ongoing right now. In the series, we've had a lot of groups come together and discuss educational policies, financial reforms, economic agendas, and all of that in the last couple of months. And most of the times, even at the beginning, the way in which the whole host of changes that we've been witnessing was viewed as probably as an opportunity for some of us to rethink and probably reimagine the way things have been functioning, or the world has been functioning at some level. So in this series of conversations, the Blue Revolution meets a Green Revolution, we have divided it as a two-part conversation where we are sort of looking at what is this village economy that everybody probably thinks of as an opportunity, and what it actually means. So I will hand over it to today's moderator, Siddharth. Siddharth is a researcher with the Research Collective, and works also with the National Platform for Small Scale Fish Workers, England, and has been associated with fisheries issues and working with fish workers for a long time, more than a decade now. So welcome, Siddharth, and welcome to all of you. Over to you, Siddharth. Thanks, Ashwati, and welcome everyone to this webinar on reimagining the future. I think I'm just going to start by introducing our speakers and our guests who are speaking today. So our first speaker who will be speaking to us is an old friend and comrade, Debashish Shamal. He is a fish worker associated with multiple platforms, right from the Fish Landing Site Union at his village in Boguran Jalpai, right until the World Forum of Fisher People, which is at the Committee of Food Security at the UN. So he has got many years of experience with engaging with fish workers movements, including the very famous Haripur nuclear plant, which was a peasant farmer fish worker uprising during the liberalization of West Bengal back in 2006-2007. He will be speaking to us about the displacement and the impacts of fish farming on land from West Bengal. We'll be joined after that by Lal Singh Ji and Mukesh Goswami, both of whom are representing the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan from Rajasthan. Lal Singh Ji is himself a small and marginal farmer, has witnessed the Green Revolution in northern India, though he currently grows food grains and works with the MKSS. And Mukesh is from a farming family, and he works with landless, small and marginal farmers. And they'll be talking to us about the trajectory of green revolutions and what this form of intensification of cropping means for small and marginal farmers and landless farmers. And finally, we have Sujata Surepalli, who is representing the Bahujan Pratighatana Vedika from Telangana. She, of course, is a ferocious Dalit activist and academic, and has bravely stood up to of course, right-wing trolling in recent times, but also to the quarrying lobby and the impact of that form of extractive capitalism in settings of work that she's engaged in. And she's also currently the principal of the University College of Arts, Social Science and Commerce at Satvahana University, and has been a longtime comrade of the students' movements as well. So welcome to all of you, and thank you so much for joining us. Just to start off the session, I'm going to start with a few points about why we are talking about the Blue Revolution meeting the Green Revolution. I think when we talk about reimagining the future,
we also have to look at it in context with what is happening in terms of policies and development into the future. And one of the things that we are finding in India is increasingly the coming together of fish production from at sea to on land. And I think while India has had its history of a green revolution in stages on land and multiple blue revolutions at sea, what we are seeing most recently, at least in the new scheme, which is called the Pradhan Mantri Matsya Sampad Yojana, is the coming together of the blue and the green revolutions, in the sense that there is now fish production shifting from marine spaces onto inland and on land sources. And apart from this national scenario, what we are also seeing is that there is a huge merger of large transnational corporations of the financialized economy with shifting production to fish. So we see large corporations, for example, in something known as the Keystone Dialogues, where capture fisheries and culture fisheries are sitting together at the same table. We are seeing, let's say, Cargill as a huge agri-feed giant, now also getting into the aqua feed business. And therefore, what does it mean for soy from Brazil, which was predominantly for, let's say, the beef market in America, now coming through to shrimp feeds in India? So there's that huge crossover of the blue and green sectors that is happening as well. And I think today's webinar is going to focus on the social actors who are caught between these forms of development converging, because at least there seems that there are avenues for competition and conflict because of the way different sectors are kind of drawn into global markets and development. But maybe because we are talking about a reimagination of the future, it is also to look and discuss with people where there are avenues of cooperation. And therefore, today's reimagination is largely focusing on this idea of what does it mean when spatial changes and timeline changes in development converge, and what it means for the people who are involved in it. And to give a very small example of what has happened, in 2017, some of us were part of a workshop that was happening in Boguran Jalpai, where Debashish is from. And the theme of the workshop was called ocean grabbing, and largely in the nature of ocean grabbing as a framework that draws from land grabbing in the post-2008 kind of financial crisis and the large kind of land swaths that were being acquired. The frame was that there is an agent which is powerful that is grabbing through the state and is grabbing the resources and the access of small farmers and fishers. And that was the frame in which we spoke about. And 2 years later, one of the demands from the union was to do a study on the economics of the shrimp farming that they were seeing in their village, which was transforming the landscape in a big way. And so when we went back and we started working with looking at the farmers in a way of what was happening, it became very clear that the actual production process, so the farm gate where all the inputs come in and the farm gate where the finished shrimp is going out, was actually under tremendous amount of pressure and stress. All the value addition in terms of R&D, development, gene, virus and gene work that was happening on the shrimp, and then the supermarket chain, the export chain, the cold supply chain, was where the value was being added. And the farmers in themselves were under a tremendous amount of pressure to produce for the market in that intense competition. And so it began to kind of dawn of us that more than a grabbing, this was kind of a pushing and pulling that was happening in the production process. And so therefore, when we talk about blue revolution meeting green revolution, what we're also trying to see is what is the push and pull that happens between actors who are involved in this process of producing a commodity that is export oriented, that is largely driven by unequal power relations. And that power relations is, I think, what is going to tie in our session together today. So I've been thinking about how I have been envisioning and what one would do to moderate this session. And maybe what we can simply do is to try and look at 3 axes. So the x-axis, the y-axis, and the z-axis. And I think the x-axis is where Debashish is going to be speaking to us about the geography of fish production, which is changing. So out at sea to coming on land, to inland waters, to an intensive pond-based production. I think Lalji and Mukeshji are going to be talking about green revolution as a timeline. So the y-axis is the timeline, where we've gone from the first stage green revolution to maybe a yellow revolution,
And now we are looking at something of a blue revolution. And what that means for small, marginal, and landless farmers to continuously be catching up with new forms of cash-intensive cropping. And Sujata, largely through her work in quarrying, which has a lot of similarities to land-based intensive fish production. They fall under environmental impact assessment thresholds. They are entirely using the commons as places of dumping their waste, and they are facilitated through power relations between the state and dominant landed people, or local powerful actors with politicians invest and extract profit out of these spaces. And therefore, the Z-axis would possibly be a power, where if I was to say the white male CEO of Cargill was the top, and a Dalit fisherwoman in this context was at the bottom of the power hierarchy, then how are the space, the time, and the power kind of axes intersecting to create and mold what we have as food production today? And therefore, to start off what we are speaking about, I'll ask Debashish to speak first. We had a conversation briefly before the webinar started, and the three kind of points that we said that he would speak about was, one, if we consider fisheries to be in crisis, then as a local fish worker who is embedded in seeing the crisis and experiencing it and also being displaced by it, what is the articulation of the crisis that Debashish Da tells us? Second, we know that there are intensive forms of fish production that are now being implemented in those spaces of crisis. So what are some of those aspects of land-based fish farming and intensification that he is experiencing? And the third thing is, what does it mean for a fish worker who is largely landless, who is largely dependent on a natural resource base within common property regimes, to access their livelihood when these forms of private property, cash-intensive, credit-led fishing or fish production means are put in place? So with that, over to you, Debashish Da. He'll be speaking for about 15 to 20 minutes before we'll switch over to our next comrades. Thank you. Thank you, Shidharth Bhai and Ashwati, and सबको मेरी तरफ से दक्षिण मत्स्यजीवी फोरम की तरफ से हार्दिक स्वागत है। जिस तरीके से इस सब्जेक्ट को चुना गया है इस समय पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैंने 2020 और मैं जब 1995 मैंने पहली बार जब नेशनल फिश वर्कर्स फोरम की भूतपूर्व चेयरमैन साहब, चेयरपर्सन हरे कृष्ण देवनाथ जी एक कोस्टल एरिया पे पदयात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने दो स्लोगन छिड़ा था। एक स्लोगन था कि जल बचाओ तट बचाओ उपकूल लोग बचाओ। मीन्स जल बचाओ मीन्स प्रोटेक्ट वाटर, तट बचाओ मीन्स कोस्टल लैंड, प्रोटेक्ट आवर कोस्टल लैंड, एंड लास्ट में जो था वो था उपकूल लोग बचाओ मीन्स प्रोटेक्ट आवर कोस्टल पीपल। और सेकेंड जो स्लोगन था बहुत इम्पोर्टेंट था, वो है ट्रॉलिंग प्रोजेक्ट भाई भाई एक दौड़ी पे फांसी जाए। मीन्स ट्रॉलिंग मीन्स ट्रॉल फिशरमैन, जो ट्रॉल बेस्ड फिशरमैन जो है मैकेनाइज्ड सेक्टर में होता है, और प्रोजेक्ट मीन्स द इंटेंसिव एक्वाकल्चर, प्रॉन एक्वाकल्चर। तो ट्रॉलिंग प्रोजेक्ट, इन दोनों को हम भाई भाई बोल रहे हैं। और जो हम चाहते हैं कि जो स्मॉल स्केल फिशरमैन हैं वो चाहते हैं कि उनको एक दौड़ी पे मंस इनको हैंग आउट एक ही रस्सी में होना चाहिए। तो ये दो स्लोगन था। हम इस स्लोगन सुनकर हम बड़े हुए हैं, तो आज तक वो स्लोगन अभी भी चल रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और हमारे स्टेट में ये दो स्लोगन होगा ही होगा। तो हम दक्षिण बंगाल मत्स्यजीवी फोरम ज़्यादा तरीके से जो स्मॉल स्केल फिशरमैन है हम उसके लिए काम करते हैं। और जो क्योंकि मैम स्मॉल स्केल फिशरमैन के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक एरिया है जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट और फूड न्यूट्रिशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसके साथ जुड़ा रहता है। आप जो लार्ज स्केल फिशरमैन है ज़्यादा तरीके से बिजनेसमैन और बिजनेस तरीके की उनको देख रहे हैं,
तो इसलिए हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है दक्षिण बंगाल मत्स्यजीवी फोरम, हम स्मॉल स्केल एंड ट्रेडिशनल फिशरमैन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको इशू को हम लेके आगे चलते हैं और गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन करते हैं। ये है हमारे ऑर्गेनाइजेशन। हम लास्ट पिछले 20 साल 30 साल से हम देखते रहेंगे कि एक चेंज समुंदर पे या कोस्टल लैंड पे बहुत बड़ा चेंज आया है। लास्ट 20-25 साल से हम देखते रहेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अभी जो सिचुएशन है 20 साल या 30 साल पहले जो स्मॉल स्केल फिशरमैन की जो उनकी जो लाइवलीहुड था, जिस तरीके से फिशिंग करने के टाइम पे फिश मिलता था, तो ये एक चेंज, एक बहुत बड़ा एक चेंज आया है। क्योंकि मैं मेरे कोस्टल विलेज, मैं कोस्टल विलेज पे बिलोंग करता हूँ, गोगुरंजल भाई सिद्दत भाई ने उन्होंने मेंशन किया है। क्योंकि उनसे हम देखेंगे 30 साल एक गैप लेंगे तो 30 साल के अंदर मोर देन 90% लोग वो फिशिंग में इन्वॉल्व था, लेकिन आज का स्थिति में 60% लोग अभी फिशिंग छोड़ के फार्मिंग में आ गए, कल्टीवेशन में आ गए। तो ये इतना बड़ा चेंज हुआ। अब यहाँ पे और एक मज़ेदार बात है, जब वशिष्ठा थोड़ा आप माइक पास में रखिएगा, थोड़ा आवाज ठीक नहीं आ रहा है। तो अभी आवाज ठीक आ रहा है? थोड़ा बात करना। तो अभी ये जो चेंज हो रहा है उसके साथ साथ उनकी लाइवलीहुड जब चेंज होता है तो उसके साथ साथ जो सोशियो इकोनॉमिक जो चेंज हुआ है, इस सबसे बड़ा हमारे गांव का बहुत कुछ चेंज हो गया, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हमने ये देखा है कि लास्ट 20 साल या 30 साल के अंदर लोगों के अंदर और भी कंपटीशन जो है वो बढ़ गया। क्योंकि कंपटीशन मतलब मानी हम कितने जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिन पे हर बार की आशंका रहता है कि इन फ्यूचर हमें पैसा कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है, आज नहीं कमाएंगे तो कल क्या खाएंगे। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम देख रहे थे कि ये हम 20 साल 30 साल पहले ऐसे नहीं था, हम समुद्र में जाएंगे, मछली मिलेगा, उसको बेचकर हमारे आजीविका हम जी सकते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा थ्रेट आया है, क्योंकि हम 20-30 साल के जो चेंज हुआ है, अभी 60% लोग अपने आजीविका छोड़ के वो निकल गए दूसरे काम पे, दूसरे लाइवलीहुड में। तो ये सबसे बड़ा ये है कि एक तो है, सबको पता है कि मेकानाइजेशन, मतलब जो अभी ट्रॉल फिशिंग जो आया है उसके आपको हम दिखा सकते हैं कि अभी सिचुएशन ऐसे ही है कि 60% कम हो गया, लेकिन जो ट्रॉल फिशरमैन है वो ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में अभी मोर देन 5000, और अभी एक गियर वो यूज कर रहे हैं 400 से लेकर 450 हॉर्स पावर का। तो इतना बड़ा चेंज हुआ है, जिसके पास अब लोग चले गए, और उससे ज्यादा लोग मैकेनाइज्ड में भी बहुत सारे माइग्रेंट होके भी जा रहा है। तो अभी ये एक सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा ये कारण है, आप देखेंगे कि हमारे जो वेस्ट बंगाल में जो कोस्ट लाइन है वो 158 किलोमीटर, लेकिन बहुत छोटा एक कोस्ट लाइन है। लेकिन आप देखेंगे उसमें एक के बाद एक कि दीघा, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 65 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, उस 65 किलोमीटर कोस्ट लाइन पे आपको क्या क्या मिलेगा? आपको दीघा टूरिज्म प्रोजेक्ट, ताजपुर डीप सी पोर्ट, दीघा फिशिंग हार्बर, शंकरपुर फिशिंग हार्बर, ये मैकेनाइज्ड सेक्टर का, और मंदारमुनी टूरिज्म एरिया, और उसके साथ साथ हरिपुर न्यूक्लियर पावर, मिसाइल लॉन्चिंग पैड एट जुनपुर, और पेटुआ घाट जो फिशिंग एशिया का सबसे बड़ा जो फिशिंग हार्बर्स है वो बोला जाता है। तो इतना कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में आप कैसे वो जी पाएंगे? क्योंकि ये बहुत सारे है प्रपोज किया गया है, और बहुत सारे एरिया है, 2-3 एरिया है, जैसे कि शंकरपुर, मंदारमुनी, दीघा, एक सब टूरिज्म एरिया है। तो इसका जो और हल्दिया तो है ही इंडस्ट्रियल एरिया।
तो ये सब जब पानी में जाता है, उनकी जो वेस्टेज पानी, वो बहुत ही समुद्र की हालत बहुत खराब हो जाता है। उसके साथ साथ जो ट्रॉल फिशिंग है, उसके कारण अभी आजीविका मछली नहीं मिल रहा है समुद्र पे। सेकेंड चैलेंज जो है वो है कोस्ट लाइन पे। जब हमने बोला था कि कैसे चेंज होते जा रहा है, हम अभी देख रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है, बहुत सारे लोग अभी इन्वेस्ट करने लग गए, बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और लोकल जो थोड़ा पावरफुल जो मनी के पावर के हिसाब से उन सब अभी इंटेंसिव एक्वाकल्चर में वो जा रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जैसे कि समुद्र में जिस तरीके से ओशन ग्रैबिंग हो रहा था, पहले सिद्धार्थ भाई उन्होंने जिक्र किया था कि ओशन ग्रैबिंग कि एक पानी में जिस तरीके से ग्रैब हो रहा है, ठीक वही इसी तरह लैंड के ऊपर भी एक आक्रमण बढ़ गया है। लैंड ग्रैबिंग की अभी काम चालू हो गया, और पिछले 20 सालों से एक काम बढ़ते जा रहा है। मैं एक जैसे कि एमपेडा ने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स उन्होंने रखा है, मुझे लगता है कि वो स्टैटिस्टिक्स मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कि उन्होंने बोल रहा है कि ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में 55,000 जमीन जो है वो एक्वाकल्चर, इंटेंसिव एक्वाकल्चर, प्रोन एक्वाकल्चर में है। मुझे लगता नहीं कि उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि इतना कम नहीं है। दूसरा है कि मैं एक ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जहां पे मैं बिलोंग करता हूं, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट नंदीग्राम बहुत पॉपुलर एक नेम है। तो उसमें से 2016-17 में उन्होंने बोल रहा है एक उनकी जो इंटेंसिव एक्वाकल्चर जो है, तो उस एक्वाकल्चर में उन्होंने बोल रहा है कि 255 करोड़ उन्होंने फॉरेन मनी अर्न किया है, उनका सिर्फ नंदीग्राम 1 ब्लॉक। और उसमें से वो बोल रहा है कि उनको 2019 में 400 करोड़ तक उनका ये करना चाहिए, फॉरेन मनी उनको लाना है। तो उन्होंने इस तरीके से बात कर रहे हैं। उसमें से क्या हो रहा है कि आप जितना पैसा आप सुन रहे हैं सिर्फ नंदीग्राम 1 ब्लॉक का, उसके आप देखेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो कल्टीवेशन मतलब पैडी लैंड है, वो करीबन 2,66,000 हेक्टर एरिया हमारे ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में। वहीं से उन्होंने बोल रहा है 2017-18 में उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स आया है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर से, उसमें से 30,000 हेक्टर जमीन फिश फार्मिंग में चला गया। तो इस तरीके से एक आक्रमण जो है लैंड के ऊपर आ रहा है। तो जहां पे हम पहले से बहुत पहले हम सुन रहा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन का बात, अभी इस ब्लू रेवोल्यूशन के कारण पूरी हालत पूरा बिगड़ गया। तो अभी हमारे जो गांव है, बहुत छोटा एक गांव है, उसमें से 1/3 लैंड जो है फार्मिंग लैंड, वो इंटेंसिव प्रॉन एक्वाकल्चर में चला गया। तो पूरे आप देखेंगे कि अब जो पैम्पलेट या जो पोस्टर आपने रखा था, वो पूरा हमारे गांव का ही है, कि पूरा आप देखेंगे कि 1/3 फिश जो फार्मिंग है वो चला गया। तो इससे मतलब कि धीरे धीरे हमारी जो जमीन, हमारी जो पानी, उसके ऊपर लोकल जो विलेज का जो लोकल पब्लिक विलेज में जो रहते हैं पब्लिक, उनके ऊपर हक भी चला जाता है। इस हक रहना बहुत जरूरी था। और उसके साथ साथ बहुत बड़ा एक सोशियो इकोनॉमिक चेंज भी हो रहा है, क्योंकि अब जब देखेंगे कि बहुत एक पेनफुल एक्वाकल्चर है। मैं पेनफुल इसलिए बोल रहा था कि आप एक दूसरे, जब इसका सीजन चलता रहेगा, इसका काम जब चलता रहेगा, वो किसी के साथ बहुत टेंशन में, हर बार वो टेंशन में रहता है कि उनका मछली क्या रहेगा, ठीक से वो कल्टीवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ठीक से खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब देखते हुए आप जब देखेंगे कि वो उस टाइम पे वो बात नहीं कर पाएगा, उनके सामने सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनको अगले 3 महीने में उनको इसको प्रोडक्शन को मार्केट में लेके आना है, उनका जो प्रोडक्शन है। तो यही उनका सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, और उसके ऊपर उनका कोई भी, उनके ऊपर खुद के ऊपर भी नियंत्रण नहीं रहता है, और ये प्रोडक्ट बेस ही है। और इसलिए क्या होता है कि पूरा जो गांव का जो सोशियो इकोनॉमिक जो चेंज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप गांव के अंदर एक पॉलिटिक्स होता है कि
आपके बीच में या आपके पास में जो रहता है पड़ोसी, तो उसका ध्यान रखना, उसको ख्याल रखना, वो क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनके जब कोई भी विपत होगा या कुछ काम पे वो जरूरत हो तो पड़ोसी जाके उनको हेल्प करता है। लेकिन आज के दिन पे अभी ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि आपको तो उस लैंड के अंदर आपको कोई एंट्री नहीं है, नो एंट्री एरिया रहता है जो फिश प्रॉन एक्वाकल्चर में, और आप उसके बाद भी नहीं कर सकते हैं कि अगले 3 महीना, क्योंकि जब वो फिश, ये सबसे बड़ा चेंज है। और इसको आप जो सुन रहे हैं आपको लगता है कि एक क्या कारण हो सकता है। हाँ, एक गांव का एक जो सबसे बड़ा एक कारण जो काम है कि हम एक दूसरे से रहना, मिलजुल के रहना, ये अभी खत्म हो रहा है। दूसरा है कि पावर, मनी पावर जो होता है वो एक साथ साथ निकल रहा है, क्योंकि डाइवर्ट कर रहा है, क्योंकि जिसके पास मनी है वो उनका जो सोच, उनका जो विचार वो बदल जाता है। और उसके साथ जो अभी ग्राउंड लेवल पे है, जो उनका इतना पैसा नहीं है, तो वो बहुत कम उनको, उनके साथ उनके जो रिलेशन है वो नहीं रहता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी जो ओशन और लैंड के ऊपर जो अभी खतरा आया है, तो जो सस्टेनेबल फिशरमैन, जो सस्टेनेबल फिशरीज, सस्टेनेबल वे पे जो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर जो काम, उनका जो कामगार चलता रहता है, लाइवलीहुड चलता रहता है, वो अभी एक बहुत बड़ा मुश्किल दौर पे हम गुजर रहे हैं। आप देखेंगे कि जब 2000 आप जानते हैं कि अभी डीमोनेटाइजेशन के बाद हमारे एरिया पे जो स्मॉल स्केल फिशरमैन है, जो स्मॉल स्केल फार्मिंग भी है, फिश फार्मर्स एंड स्मॉल स्केल जो ऐसे कल्टीवेशन करते हैं, जो थोड़ा टमाटर, पोटैटोज ऐसे उगाते रहते हैं, उनकी हालत आफ्टर डिमोनेटाइजेशन बहुत खराब स्थिति में चला गया। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे रखूंगा। जो स्मॉल स्केल फिशरमैन है, आप सोचिए कि 2015 में जो ड्राई फिश 26 रुपया पर केजी बेचता था, 2016 में आफ्टर डिमोनेटाइजेशन 12 रुपया पर केजी उन्होंने बेचा। और सिर्फ इतना ही नहीं, और जिनके पास, जो मर्चेंट के पास ड्राई फिश मर्चेंट जो रहता है, उससे उन्होंने जितना ही दिया उतना ही उनको लेना पड़ा। उन्होंने बोला कि डिमोनेटाइजेशन के कारण हम बेच नहीं पाया, तो इसलिए मैं आपको इतना ही रेट दे रहा हूं। आपको ड्राई फिश आप देना चाहिए, आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते, तो नहीं देना है। तो सिचुएशन ऐसे ही चला गया। सेकेंड जो है, आज बहुत सारे स्लोगन आता रहता है, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, बहुत सारे अभी बहुत बात होता है कि आत्मनिर्भर भारत, अभी बात होता है कि बहुत मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया, ये सब की बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखेंगे कि स्मॉल स्केल जो फिशरमैन है वो जीरो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है, लेकिन उसके जिक्र अभी कभी नहीं किया जाएगा। कोई भी आप देखेंगे ये सब मुनाफा की बात होगा, फायदा की बात होगा, और उस फायदा को लेकर उन्होंने आगे बढ़ते जाएंगे कि हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम कितना कम समय पे कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना फॉरेन मनी आ सकता है, इसके ऊपर चर्चा होता है। कभी लाइवलीहुड की बात नहीं होगा, कि अब सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं होगा। और जब तक हम फायदा छोड़ के जब लाइवलीहुड और इनको स्ट्रेंथन, जो स्मॉल स्केल को स्ट्रेंथन करने का जब बात नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे इस सेक्टर को हम किसी भी तरह बचा नहीं पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से स्मॉल स्केल सेक्टर में हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे सेक्टर पे हम इतना प्रोडक्शन बेस में इतना कर नहीं सकते। तो इसलिए बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे फिशरीज में या बहुत सारे सेक्टर में मैनेजमेंट की बात होती है। मैं एक एग्जांपल की तरफ से मैं रखता हूं कि अब जो मैनेजमेंट, हम बहुत पहले से मैनेजमेंट करते आ रहे हैं। आप देखते रहेंगे कि फुल मून में हम मछली पकड़ने के लिए नहीं जाएंगे, अमावस्या में हम मछली पकड़ने के लिए नहीं जाएंगे, हम 8 महीना मछली पकड़ेंगे या उस 4 महीना बंद रखेंगे। एक अपने आप से एक मैनेजमेंट होता था, लेकिन अभी सब कुछ बदल गया। अभी गवर्नमेंट की तरफ से मैनेजमेंट की बात आ रही है, मैनेजमेंट की पॉलिसी लेके आ रही है। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो गया, क्योंकि ऐसे स्थिति आ गया कि अभी फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया ने या बहुत सारे गवर्नमेंट जो उनका जो इंस्टीट्यूशन है, वो अब बात कर रहे हैं कि ओवर फिशिंग हो रहा है, लैंड ग्रैबिंग हो रहा है। और ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी अभी बात हो रहा है कि
जिस तरीके से लैंड ग्रैबिंग हो रहा है ऐसे होते जाएंगे तो हम फूड सिक्योरिटी में हम जो उसमें हम आगे आने वाले दिन पे बहुत बड़ा एक चैलेंज के सामने हमें खड़ा कर देगा। न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है वो हम सबसे बड़ा चैलेंज के सामने खड़ा कर देगा। तो इस स्थिति में हमें देखते हुए जो आत्मनिर्भरता की बात कर रही है, हम तो पहले से ही था, हम ऐसे दिन नहीं गया, हम तो मछली पकड़ के ही हमने हमारे जो लाइवलीहुड हम चला रहे थे, हमारे बच्चों को पढ़ाई का बात हो रहा था। आज आत्मनिर्भर तो हम खुद पहले से ही थे। जब से डिमोनेटाइजेशन का बात हुआ तब से आत्महनन की बात हो रही है। आत्मनिर्भर की बात तब होता है जब आत्महनन उन्होंने किया है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट को पास इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने किस तरीके से आत्महनन किया है। मुझे लगता है कि इसलिए आत्मनिर्भर की बात होती है, नहीं तो अब कभी भी इस तरीके से बात नहीं हो पाएगा। हम पहले से आत्मनिर्भर, कौन सा एजेंसी कितना रुपया दिया है हमें जब हम मछली पकड़ने के लिए जाते हैं या फिश फार्मिंग के लिए हम जब करते हैं, तो कौन सा गवर्नमेंट है जो बोलते हैं कि आप फिशिंग के लिए जा रहे हो, आपका सीजन अभी चालू होगा तो आप इतना रुपया लेके जाओ, 2 लाख रुपया लेके जाओ। कोई भी बैंक भी नहीं देता स्मॉल स्केल फिशरमैन को, कोई भी एजेंसी नहीं है गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल एजेंसी है जो उनको सपोर्ट करते हैं, लोन भी नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास कागज नहीं है। तो सिचुएशन इस तरीके से निकल आ गया। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा जब तक आपके पास कागज नहीं है, कागज का आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास सोने नहीं है आपके घर में, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। सिचुएशन इसमें है, तो आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? तो ये तो आत्महनन की बात हो रही है, सबसे अहम मुद्दा है। और दूसरा जो है आज आत्मनिर्भर के ऊपर मैं इसलिए मैं बात कर रहा हूं, आप देखेंगे कि हमारे गांव में या आसपास या छोटे छोटे शहर में, हमारे एरिया में बहुत सारे नींबू पानी बेचने वाला बहुत लोग था, बस में, रास्ते में ठेले लेके बेचते था। तो अभी वो बेचने वाला कहाँ गया? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी कोक का जमाना आ गया, अभी बहुत सारे जूस का जमाना आ गया। तो सिचुएशन इस तरीके से जा रहा है। मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर हम पहले से ही था, जब तक इसका आक्रमण नहीं बंद होगा, मुझे लगता है कि आने वाले दिन पे हम कभी भी इसके ऊपर हम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। और जब तक हमारे पास खुद की राइट्स नहीं होगा, पानी के ऊपर हमारे हक नहीं होगा, जमीन के ऊपर जब तक ये हमारे हक नहीं होगा, तो हमें आने वाले दिन पे बिल्कुल हम जी नहीं पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे कि जो लोग हैं, जो जिसके पास पैसा है, उसके पास खुद का अपने वो कर लेंगे। अभी हमारे सिचुएशन अभी ऐसे ही आ गया कि एक ब्लॉक है मोहिशादल, बहुत हल्दिया इंडस्ट्रियल एरिया के पास है। तो उसमें जो इंटेंसिव एक्वाकल्चर करने वाले लोग एक का 100 बीघा जमीन है, 50 बीघा जमीन है, वो लेके इंटेंसिव एक्वाकल्चर कर रहा है। अभी ये स्थिति आ गया कि उनके पास इतना ही पैसा है, बीच में जो पास में जो उनका जमीन रहता है वो फार्मिंग का, वो कल्टीवेशन कर रहा है, पैडी लैंड है, उसको बोल रहा है आपको कितना मिलता है? 8,000, 10,000, 20,000, मैं आपको 50,000 दे रहा हूं। मतलब आप देखेंगे कि ये जो मनी पावर, इस मनी पावर के साथ साथ आप अपने आप एक मासल पावर उनको फ्री मिलता है। अभी फ्री का बहुत अभी आ गया, एक के साथ एक फ्री, दोनों 2 शर्ट खरीदेंगे तो एक शर्ट आपको मुफ्त में मिलेगा। ऐसे आप देखेंगे मनी पावर के साथ साथ खुद एक मासल पावर उनको अपने आप फ्री मिलता है। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो जमीन अभी इंटेंसिव एक्वाकल्चर जहां पे है जमीन, उसकी जो ओनर्स हैं, पास में बगल वाले जो पैडी लैंड है, उसको वो जबरदस्ती वो उनको ओनर्स में लेके आएगा। उनका दिमाग में चलता है कि मैं कितना और भी बड़ा हो सकता हूं। अभी सिचुएशन ऐसे ही हो गया। तो मुझे लगता है कि इन आने वाले दिन पे जिस तरीके से एक ग्रैबिंग हम इसको जब तक हम खत्म नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है कि आने वाले दिन पे हम बिल्कुल हम जी नहीं पाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्मॉल स्केल को स्ट्रेंथन करना, उनको आगे बढ़ाना। और मैं लास्ट में 2 बात हम रखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की तरफ से, एक पॉइंट है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या क्या हम हमारे तरफ से क्या दे सकते हैं। जैसे कि हम गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कुछ योजनाएं पेपर्स में हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट में
जब इम्प्लीमेंटेशन होता है ग्राउंड लेवल पे, उसका जिक्र हम अब जब तक नहीं देखेंगे कि आप विश्वास ही नहीं होगा। मैं उसके लिए 2 एग्जाम्पल रखते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, में पहले ही बोला था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बोल रहा है कि ओवर फिशिंग हो रहा है, बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव वे में जो कल्टीवेशन लैंड है उसको लेके जा रहा है, वो कन्वर्ट होके जा रहा है। एक भी आप लैंड नहीं देखेंगे कि अब लैंड कन्वर्सेशन हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खेती से आप लेके जा रहे हैं, खेती से जब आप टॉन में लेके जा रहे हैं, तो उसको लैंड कन्वर्सेशन बहुत बहुत जरूरी है। लैंड का जो कैरेक्टर है वो चेंज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल वो नहीं कर रहे हैं, वो इलीगल है। दूसरा है, और उसके लिए उनको सब कुछ लोन सब कुछ मिलता रहता है। दूसरा है, फिशिंग सेक्टर में आप देखेंगे बोला है कि ओवर फिशिंग हो रहा है, लेकिन उसके लिए नया रजिस्ट्रेशन, बोट का रजिस्ट्रेशन बंद होना बहुत जरूरी है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जब बोल रहा है कि जब इंस्टीट्यूशन की तरफ से जब बोल रहा है कि बोट नया रजिस्ट्रेशन देना बंद है मैकेनाइज सेक्टर को, और गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सबको बैन कर रहा है, स्मॉल स्केल हो और लार्ज स्केल, दोनों सेक्टर को ही बंद कर रहा है। एक ऐसा इंसाफ है। तीसरा है कि हमारे इस जमीन को हमें अपने आप को बेचने का अभी गवर्नमेंट की तरफ से बात हो रहा है। जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में एक मोयना मॉडल की बात हो रही है। मोयना मॉडल क्या होता है, उसमें रूही, कतला, ये सब की तिलापिया, इस सब की फार्म की कल्टीवेशन की बात हो रही है। लेकिन उसमें जिस तरीके से इंटेंसिव प्रॉन एक्वाकल्चर के जिस तरीके से कल्चर होता है, वही तरफ फार्मर्स की भी होता है, क्योंकि उनसे प्रोडक्शन ज्यादा होती है, ज्यादा एंटीबायोटिक, ऑक्सीजन, ये सब आपको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि उन मोयना मॉडल को, क्योंकि उनको प्रोडक्शन बेस्ड उनको दिखाना है कि हम इस साल 14 लाख था, आने वाले 2 साल के अंदर मुझे 18 लाख टन करना है, और हमें आंध्रा से फिश नहीं लेके आना है, आयात नहीं करने का है, महाराष्ट्र के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। तो इसलिए उन्होंने इस मोयना मॉडल को चालू किया। मोयना एक ब्लॉक का नाम है, एक एरिया का नाम है। तो उस मॉडल को लेके आने का बात हो रहा है। मैं इसलिए बोल रहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे ऐसे पॉलिसी लेके आ रहा है, जैसे कि आप बोल रहे थे कि केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फिशरमैन, जैसे कि फार्मर्स को मिलता रहता है। आप देखेंगे इसमें से एक एक ब्लॉक, एक ही डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ब्लॉक लेवल जो ऑफिसर है, फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर, उन्होंने एक एक लेवल पे, एक एक ब्लॉक में एक एक रूल्स चालू किया है। जैसे कि हमारे ब्लॉक कोंटाई 1 ब्लॉक, तो उसमें से आप देखेंगे कि उसमें से आप सिर्फ अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, बैंक आपको लोन देने के लिए प्रोसेस को तैयार करेगा। लेकिन अभी पोटसपुर 2 ब्लॉक में जाएंगे तो वहीं पे वो बात क्या कर रहे हैं कि बोल रहा है कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात यही बोल रहा है कि अभी आपको कनेक्शन करना, क्योंकि वो बोल रहा है कि नहीं, आपको पंचायत या सरपंच इनको सर्टिफिकेट लेना है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मैं लास्ट में 2 बात, लास्ट में 2, जैसे कि हम बोलते रहते हैं कि जो प्रेफरेंशियल, जब तक हम एक स्लोगन है जाल जार चौलता, कि दक्षिण बंगाल मत्स्यजीवी फोरम का एक स्लोगन है जाल जार चौलता, मीन्स जिसके पास नेट है उसके पास जल का जो है वाटर, पानी का हक उनको ही होना चाहिए। तो इसलिए हमें एक सब्जेक्ट को आगे लेके जाना है। मुझे लगता है कि आज जो वेबिनार हो रहा है कि इस बात को बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि जो प्रेफरेंशियल एक्सेस फॉर स्मॉल स्केल फिशरमैन, और वो होना चाहिए, और पानी में मछुआरा का हक होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम आने वाले दिन पे, और भी जो अभी 20% बचे हुए हैं, आने वाले दिन पे 0 में आ जाएंगे। तो और हमारे मरना, हमारे इस लाइवलीहुड में जाना, तो आने वाले पीढ़ियों के लिए या आने वाले नेचुरल रिसोर्स और इसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। धन्यवाद। Thank you, Devashish Da. Sorry, we went a bit over time. There was some technical glitch. I could not unmute myself and ask Devashish Da about the time. I think there are a few things that Devashish Da has said, and I'm just going to pick up on this comment from Ashok Da as well, and maybe come back to it when we are having a discussion, in the sense that Ashok Da is telling us that Green Revolution was never meant for small and marginal farmers, and therefore we need a revolution. And I think the very aspect of Blue Revolution meeting Green Revolution is this aspect of
of a resistance movement. And and later when we come back to the discussion session, I'd like Ashokda to respond to this, because what Debashish is telling us is that maybe in 2006, 2007, we had the ability to come together as a group of peasants, farmers, and fish workers to look at dispossession that was happening because of the Nandigram SEZ, or something that was happening because of the Haripur nuclear plant. But when we see today that same model of dispossession, because for the fish worker on the coastline, the dispossession continues. Either it was by the nuclear plant, or it was by the mechanized boat, or now it is by intensive production at sea. But what has changed for some of the other actors in this process is that there has been a shift either from one single rain-fed rice to a second winter variety, the Bodo and Aman, which doubled production in the 80s and 90s. Similarly, once that started dwindling, there has been the ability to move to land-based production. Those who had capital inputs were able to invest in shrimp aquaculture, or one of the important things that Debashish Das said was, for those who don't have land, there is now a land market to acquire land for shrimp and intensive farming, where the returns that you get just on the rent for your land is way, way, way higher than what you would do in farming for paddy. And I think that points to a few important points between the sectors as well, which is the idea of self-reliance or Atmanirbharta, where government policies or certain development, including most recently demonetization, have introduced forms of vulnerabilities and destruction. And therefore, of that destruction are now conversations about self-reliance, of Atmanirbharta. And therefore, we will need to talk about what was this destruction and what an alternative model of farming might look like that brings together some of these sectors that Ashokda is referring to. So moving on to that, I'll take the session right over to the second group of people that we have, which is to look at this race that small and marginal farmers have been put under, either to grow a crop that is dictated by revolution technologies from the state, or to use their lands as assets to be leased out or loaned out to land banks for SEZs or quarries or shrimp farms, because that revenue is higher. And therefore, what it means for a small and marginal farmer from central India, from Rajasthan, who has witnessed these revolutions, because I think the blue revolution going towards intensive forms of land is actually digging up land, putting the topsoil into brick kilns, and then putting water into it and growing fish. Similarly, Haryana and Punjab, which are seeing saline and alkaline soils from green revolution technologies, are now being counted as land which is suitable for export-oriented shrimp. So the new policy talks about how many X lakh hectares of land there are available. And therefore, all of these mass land scale conversions are going to start happening. So over to the next speakers to talk to us about what is the agrarian crisis from their perception, and what does it mean when the government keeps introducing new cash intensive crops as a way to alleviate this crisis. What actually happens to the small and marginal and landless farmers in this process? Mukesh ji and Lal Singh ji, over to you. सबको नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है सब तक? देखिए, मेरा नाम लाल सिंह है और मैं मध्य राजस्थान के राजसमंद जिले का रहने वाला हूँ। मैं खुद काश्तकार हूँ, बहुत छोटा काश्तकार हूँ। मेरे पास 15-20 बीघा जमीन है और मैं खुद ही खेती करता हूँ। तो अगर मैं शुरू करूँ यहाँ से कि और आज की खेती में क्या फर्क आया है और क्या नफा और क्या नुकसान है, तो सीधा सा मुझे लगता है कि जो हम पहले खेती करते थे तो बिल्कुल खर्चा नहीं था। बैलों से खेती होती थी। हम खुद बैलों से जोत करके खेती करते, निराई गुड़ाई करते और कटाई करते और बैलों से ही फसल को निकाला जाता था। तो उसमें खर्चा लगभग नहीं के बराबर आता था और अगर आता भी तो 10-20% आता था। लेकिन आज हम अगर उसको मुड़ करके देखें तो बहुत बड़ा चेंज आया है। आज ट्रैक्टर से खेती होती है तो ट्रैक्टर के लिए या तो खुद का ट्रैक्टर है या फिर किराए पे लाना पड़ता है, तो खर्चा होता है।
बीज हमें पहले हम खुद रखते थे, अब बीज हमें खरीद के लाना पड़ता है। पुराने जमाने में बीज के साथ दवाइयां की जरूरत नहीं थी। आज हम जब खेती करते हैं तो बीज के साथ साथ खाद भी लाना पड़ता है, दवाइयां भी लानी पड़ती है, फिर कटाई भी मशीन से हो रही है, फिर उस फसल को निकाला भी मशीनों से जाता है। तो कुछ पैदावार तो बढ़ा है, क्योंकि जो भी फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, चाहे वो डीएपी हो चाहे वो यूरिया हो, तो कुछ पैदावार बढ़ा है, लेकिन खर्चा 90% हो गया। जो पहले 10% था वो 90% के आसपास हो गया है, और किसानों को ये पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वो अपने अकाउंट से रखते हैं। जो कंपनी और उद्योग जगत या और कोई व्यापारी जिस तरीके का हिसाब रखते हैं, वो लागत कितनी हुई और फिर उसको तय किया जाता है कि इसको अगर इस भाव में बेचें तो हमें इतना 10%, 20%, 30% और 40-50% तक, या कहीं कहीं पर 100% मुनाफा लिया जाता है। लेकिन किसान को क्या मिल रहा है, ये अगर हम बहुत गहराई से देखें तो मान लीजिए कि 20 बीघा में एक छोटा किसान खेती कर रहा है और उसका खर्चा आता है 1 लाख रुपए, और उसकी इनकम होती है 1,10,000 रुपए। तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैंने खर्चा कितना किया, क्योंकि वो कहीं लिखता नहीं है, कोई हिसाब नहीं रखता, कोई अकाउंट नहीं रखता। तो उसको सीधा सा ये लगता है कि मुझे 1,10,000 की इनकम हुई, जो उसने इन्वेस्ट किया उसको भूल जाता है और सीधा ही इनकम को जोड़ लेता है। और ऐसे करते करते जब 5-10 साल निकल जाते हैं तो तब उसको पता चलता है कि मैं बहुत कर्जे में डूब रहा हूँ। तो तब तक उसको पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। तो फिर वो इतना कर्जे में डूब जाता है कि वो अपना कुछ जमीन के कुछ हिस्से वो बेचने पर मजबूर हो जाता है, उसके बावजूद भी वो कर्जा नहीं उठा पाते। तो इसलिए किसान सुसाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जितना लागत है उतना पैदावार नहीं आ रहा है। तो पहले 10% खर्चे होते थे और 90% बचत होती थी। अभी 90% खर्चे होते हैं और 10% बचत होती है। तो ये जो बहुत बड़ा फर्क आया है, जो चेंज आया है, उसकी वजह से किसान सुसाइड कर रहे हैं, और अभी तक किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं। आंध्रा में जो एक प्रयोग हुआ था, आपको पता होगा कि वहां जब YSR रेड्डी जो सीएम थे, उन्होंने कहा किसान क्यों सुसाइड कर रहे हैं, तो लगा कि कर्जे में डूबे हैं, तो उन्होंने कहा सरकारी लोन सारे माफ कर दो। लेकिन एक्चुअली लोन सरकारी नहीं है, ये लोन भी खेती में दे रहे हैं जो फाइनेंस कंपनियां हैं, और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देती है, 20%, 25%, 30% तक उनका इंटरेस्ट। तो आप बताइए कि किसान का अगर कर्जा बढ़ते जाएगा तो वो सुसाइड करेगा, क्योंकि उनके पास कोई अकाउंट्स के सिस्टम है नहीं, हिसाब किताब रखते नहीं, तो बढ़ते जाता है और वो सुसाइड कर रहा है। तो बहुत बड़ा फर्क आया है कि किसान की आय पहले जितनी थी उससे बहुत कम हो गई है। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम आत्मनिर्भरता हमारी खोती जा रही है। उल्टा ये हो रहा है कि हम कर्जे में डूबते जा रहे हैं। दूसरा एक पहलू है कि पहले किसान ये तय करता था कि मुझे गेहूं भी बोना है, चावल भी बोना है, दाल भी बोनी है और तिलहन भी बोना है, तो वो अपने हिसाब से कितना % जो उसको अपने घर के उपयोग के लिए चाहिए वो होता है। लेकिन अब उन्हें सिखाया जा रहा है कि तुम ये फला क्रॉप तैयार करो ताकि इससे इनकम इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो वो दो जगह फंस जाता है कि मान लीजिए उसने सोया बोया, तो जैसे ही सोया का पैदावार हुआ, उपज होते ही वो मंडी में जाता है तो उसके भाव डाउन हो जाते हैं, तो वहां वो डिफिट खा जाता है। फिर दूसरा, सिर्फ वो पैसे लेकर के घर आता है, उसे थोड़ा सा जो पैसा मिलता है उसमें बाकी चीजें, उसको गेहूं भी खरीदना पड़ रहा है, चावल भी खरीदना पड़ रहा है, तो उसके भाव डबल हो जाते हैं। जो किसान अपने लिए करता था उसे न तो वो मंडी में बेचता था, वो सारी चीजें बैलेंस करके रहे, लेकिन अब अपनी फसल भी उसको बेचनी है और दूसरी भी उसे खरीदनी है, क्योंकि उसके पास सब कुछ नहीं है। ये उन्हें सिखाया गया है। तो वो दो तरह की दोहरी मार को झेलते हुए वहां भी वो डूब रहा है। तीसरा इसका बहुत बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि
आर्थिक नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसको शारीरिक नुकसान भी, वो जितना फर्टिलाइजर यूज कर रहा है उससे जो बीमारियां आ रही है उसके लिए उसको और खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो भी एक तरीके से खर्चा में ही आ रहा है। तो आप मान के चलिए कि किसान कभी भी अब इस से उबर नहीं पाएगा। जिस तरह की व्यवस्था हमें दी जा रही है, सिखाई जा रही है, तो किसान कभी नहीं उभरेगा। आप देख लीजिए कि बहुत जागरूक किसान हैं, बड़े किसान भी है पंजाब के, लेकिन वहां जिस तरीके का वो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो उनकी खेती चौपट होती जा रही है, उनको ज्यादा यूज करना पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि वहाँ जो कैंसर और बाकी जो बीमारियां होती हैं, एक स्पेशल ट्रेन बीकानेर आती है पंजाब से, और वो सिर्फ कैंसर रोगियों के लिए है। तो अब और कितनी ट्रेनें पता नहीं उनको और चलानी पड़ेगी, उसके बावजूद भी बीमारी का कहीं कोई अंत होने वाला नहीं है। अब तो ये हो गया है, जो पंजाब से बहुत सारे किसान हैं उनसे हमारा जो संपर्क है वो ये राजस्थान से उनके खाने की सामग्री खरीद रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता है, जैसे जवार और बाजरी का जो इलाका है, मारवाड़ का जोधपुर, ये पाली और इस वाले इलाके में, क्योंकि वहाँ बरसात के ऊपर डिपेंड है, और जो बरसात से फसल होती है वहाँ कभी बहुत कम बारिश होती है, तो वो फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं, तो उसमें बीमारियां होने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि वो नेचुरल खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, इसलिए वहां से वो अपना खाने की सामग्री खरीद के ले जा रहे हैं। तो कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि जो इलाका पहले हरित क्रांति लेकर के आया और बहुत खुशहाल बनने जा रहे थे, वो भी अभी डूबने के कगार पे है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत नुकसानदायक चीजें हैं। और अब तो संशय पैदा हो गया कि पंजाब और हरियाणा से जो गेहूं और चावल बिकने जा रहा है, तो लोगों को संदेह मन में पैदा हो रहा है कि जब ये खुद ही वो चीजें राजस्थान से खरीद के ले जा रहे हैं और वहां की खाद्य सामग्री हमें बेच रहे हैं, तो हम क्यों पागल हैं जो हम खरीदें। तो आने वाला भविष्य पंजाब और हरियाणा के लिए बहुत बुरा होने वाला है जो हरित क्रांति लेकर के आए, क्योंकि उनके चीजें मार्केट में बहुत कम बिकेगी, कोई लेने को तैयार नहीं होगा। तो ये जो स्थितियां पैदा हो रही है उसके लिए हम कौन जिम्मेदार है, क्योंकि हमें अभी भी सिखाया जा रहा है कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता के बजाय हम गुलामी की ओर धकेले जा रहे हैं, स्वास्थ्य में हमारा बिगड़ते जा रहा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो खाद्य सामग्री में अनाज, मोटे मोटे जो अनाज, लेकिन सब्जियां, पुराने जमाने में मेरा जो इलाका है राजस्थान मिर्ची के लिए बहुत फेमस था, मिर्ची और बाकी सब्जी, लेकिन आज हम जो मिर्ची है, हरी मिर्च के लाले पड़ रहे हैं, हमें दूसरी जगह से आयात करना पड़ रहा है, जो कि हम पहले तैयार करते थे। अभी इसमें इतनी बीमारियां आ गई है कि अभी भी हमने गर्मी के दिनों में जो फसल लगाई है, मेरे खेत में लगाई, तो हमने अभी 20,000 रुपए खर्च करके एक बीघा में मिर्ची का पौधे लगाए, लेकिन उसका जीरो पैदावार हुआ है, जीरो। तो आप अंदाज लगाइए उसके में अभी भी हम खर्चे किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक उसका कोई पैदावार नहीं आया है, तो हम तो जीरो पे पहुंचने जा रहे हैं। तो बहुत ही बुरे हालात होने जा रहे हैं खेती में। और दूसरी तरफ किसानों को अभी कुछ मिल नहीं रहा है, अभी न उन्हें लोन मिल रहा है। अभी जो फाइनेंस कंपनियां आई है वो तो 25%, 30% में होम लोन या कृषि लोन दिए जा रहे हैं, तो वो तो चुकाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आने वाले भविष्य में, जो राजस्थान में कभी किसान सुसाइड नहीं कर रहे थे, लेकिन अब चालू हो गया है, क्योंकि पहले हम सुनते थे कि किसान बाकी इलाकों में सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन अब हम अपने पड़ोस में ही ये किसानों की आत्महत्याओं को देखने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और निकट भविष्य में शायद मुझे लगता है कि बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। इस साल भी हमारे यहाँ अकाल है, अभी तक बारिश नहीं हुई है। पूरा राजस्थान लगभग बारिश पे डिपेंड है। बहुत कम इलाके हैं जहाँ ग्राउंड वाटर को से खेती की जाती है, कुछ जगह नहरें हैं, तो बाकी जगह और वाटर लेवल इतना नीचे जा रहा है, तो हर बार किसानों को अपना कुएं गहरे कराना पड़ रहा है, उसमें भी खर्च आ रहा है। फिर बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं,
पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि किसान को खेती करने में जो खर्चा लगाया जा रहा है उसका जितना भी हमें वापस निकल के नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ हमें कोई अधिकार नहीं है, किसान को कोई अधिकार नहीं है कि अपने फसल का कितना लागत मूल्य आया, क्या रेट तय करना है। तो हमारी फसल के दाम भी मार्केट तय करता है और मार्केट का जो प्रोडक्ट है उसकी भी रेट मार्केट तय करता है। तो किसानों के ऊपर दोहरी मार आ रही है। तो आने वाला भविष्य किसानों के लिए और बुरा होने वाला है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हमें बड़ा खेद है और दुख है कि छोटे और मार्जिनल जो किसान हैं, लघु किसान हैं, उनके ऊपर तो बहुत बड़ी मार है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनको तो अपना खेती जब करते हैं तो उसका 50% हिस्सा वो जमींदार को देना होता है। तो वो और भी घाटे का सौदा करते हैं, क्योंकि उनके पास तो अपनी जमीन नहीं है और 50% उसको अपने जमींदार को देना है। तो उनके लिए तो बहुत मजदूरी करने से भी बहुत बुरे हाल होते हैं। वैसे राजस्थान में ये मछली पालन का बहुत कम होता है, क्योंकि राजस्थान तो वैसे ही अकाल होते रहते हैं, पानी नहीं है। तो मछलियां तालाबों में पाली जा रही है। तो छोटे छोटे जो तालाब हैं, छोटे छोटे जो डैम हैं, उनमें मछलियां पाली जा रही है। मेरा एक बांध है, अभी बारिश नहीं हुआ है, लेकिन गत वर्ष थोड़ा बारिश ठीक हुआ, उसका पानी है। अब उसमें जो मछली पालन हो रहा है उसमें वो मुर्गी के वो खाद ला करके उसमें डाल रहे हैं, या गोबर ला के डाल रहे हैं, या और कोई ऐसी चीजें डाल रहे हैं। उससे वहां का पानी भी खराब हो रहा है और हमें पीने का पानी मात्र जो एक तालाब से मिलता है उसमें भी मछली पालन शुरू हो गया और उसका भी बहुत बड़ा कुछ फायदा नहीं है। उल्टा मुझे लग रहा है कि जो नेचुरल मछली जो समुद्र से लोग लाते थे तो उनको घाटा हो रहा है और यहाँ के लोगों को भी कोई विशेष फायदा नहीं मिल रहा है। तो इस समय जो चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो और कोई किसानी का काम हो, वो धीरे धीरे और घाटे में जा रहा है और आने वाला समय किसानों के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। और किसान के लिए एक और विडंबना है कि राजस्थान का किसान मजदूर भी है और किसान भी है। तो कई बार जब अकाल हो जाते हैं तो उनको खरीदना भी पड़ता है, तो वो ये भी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं कि फसल के दाम बढ़ाओ, क्योंकि हो सकता है कि इस बार वो फसल का दाम बढ़ाने के लिए मूवमेंट करें, अगली बार अकाल है तो उनको खुद को खरीदना पड़ेगा अनाज। तो वो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, ना तो भाव को बढ़ाने के लिए आंदोलन कर सकते हैं, ना भाव को घटाने के लिए। तो वो दोनों तरफ से दोहरी मार झेलने पर मजबूर है। मैं इतना ही बात कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद लाल सिंह जी। तो मुकेश जी, हाँ जी, सॉरी हम समय के थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो मैं आपसे विनती करूंगा 5 से 7 मिनट में या 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा आप बात कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। जी जी जी। तो बेसिकली लाल सिंह जी ने बहुत सारी बातें जोड़ी हैं। मैं उसमें थोड़ा सा मैं शुरू करना चाहता हूँ। बेसिकली कोई भी एक तरीके से जमीन से जुड़ा हुआ या भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी हम बात करें तो मुझे लगता है कि भूमि सुधार जब तक नहीं होगा, जिस तरीके की स्थितियां हैं जो देवाशीष भाई ने कहा कि वास्तव में जो समुद्र में मछली पालन हो रहा था अभी ग्राउंड पे जमीन पे आ गया है, और जिनके पास जमीन है, जिनके पास बड़ी जमीन है, जिस जिस तरीके से जमीन बेसिकली है लोगों के पास, उसी तरीके से वो मछली पालन बढ़ता है। वैसे ही हम लोग राजस्थान हो या जो एक तरीके से ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ की भी एक तरीके की स्थिति देखें तो उसका फायदा भी कुछ लोगों को ही हुआ। और हम ये मुझे लगता है शायद ये बात भी करना पड़ेगा कि हाँ उसके कुछ फायदे मुझे लगता है कि पूरी जो किसान कम्युनिटी है, फार्मिंग कम्युनिटी है, उसमें भी, क्योंकि एक बार्गेनिंग पावर बना। 1970 के दशक तक हम देखते हैं तो राजनीति में जो लोग थे बेसिकली या तो उच्च थे, एलीट वर्ग के लोग थे, स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग थे वही थे। लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद हम लोग देखते हैं चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो, देवीलाल हो, इस तरीके के जो एक किसान नेता उसमें उभर के आए, वो जरूर वो बड़े किसान थे, लघु सीमांत और भूमिहीन लोग उसमें बहुत नहीं आए।
लेकिन उनकी भी बात कहीं ना कहीं उसमें उठाई गई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें खराब की, उसकी वजह से हमारा खाना खराब हो गया, पेस्टिसाइड आ गया, बहुत सारे बेसिकली केमिकल्स आ गए हमारे खाने में और प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन एक तरफ पॉलिटिक्स में है किसानों के लिए, क्योंकि एक तरीके से एक बड़ा प्रेशर ग्रुप किसानों का बन गया और बड़ी संख्या है, मजदूर और किसान ही है जो बड़ी तादाद में हमारे देश में है। तो उनका एक प्रेशर ग्रुप जरूर बनना शुरू हुआ 70 के बाद, और वो अभी तक लगातार जारी है। हालांकि कितना वो बार्गेन कर पाते हैं वो एक दूसरा मुझे लगता है सवाल है। तीसरी जो बात हुई बेसिकली, वो एक बड़ी बात ये है कि हमारा जो सामाजिक ढांचा है और जो ताना बाना है, उसके अनुसार जमीन के जिस तरीके के चाहे कहें कि जागीरदारी प्रथा थी, और राजस्थान तो एक तरीके से हम कहें प्रिंसली स्टेट थे बहुत सारे, और उन प्रिंसली स्टेट्स में इतने सारे जो जमीन थी वो जागीरदारों के पास थी, लोगों के पास अभी भी जिस इलाके में मजदूर किसान शक्ति संगठन काम करता है या कोई भी इलाका ले लें, हमारे यहाँ पे इस पूरे राजस्थान में बहुत कम 5% होंगे जो बड़े किसान होंगे। 90-95% बहुत छोटे छोटे किसान हैं, 1 बीघा से लेकर के 10-15 बीघा जमीन वाले लोग हैं, जिनकी वास्तव में जो जूझ रहे हैं उस तरीके से जूझ रहे हैं। तो उनको लेकर के, और जो भूमि सुधार एक तरीके से चकबंदी आया अलग अलग तरीके का पश्चिम बंगाल ने, जो हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, मुझे पता नहीं है कि कितना भूमि सुधार पश्चिम बंगाल में हुआ, लेकिन जगह जगह जो चर्चाएं होती हैं उसमें यही सुनने को आता है कि अभी तक जो सबसे अच्छा जो भूमि सुधार हुआ है, या कहें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो सबसे ठीक अभी तक कर पाए हैं, वो पश्चिम बंगाल और केरल है। उसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर भारत के जितने भी नॉर्थ इंडिया के जो राज्य हैं, उनमें अभी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बहुत ज्यादा ही अनइक्वल है, और जिनमें ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ उनमें तो और भी ज्यादा है। और उसके बाद में जो येलो रिवोल्यूशन आया, जिसमें कि राजस्थान भी शामिल है, जिसमें मस्टर्ड और रेपसीड का बड़े तादाद में उत्पादन होता है, सरसों का बड़े तादाद में उत्पादन होता है, आज भी हो रहा है उन सारी चीजों में। तो वो भी कहीं ना कहीं बेसिकली इसको मुझे लगता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने ये जो किसान के हाथ में जो चीजें थी वो कंपनियों के हाथ में, जो देवाशीष भाई ने कहा था, चाहे वो मछलियों का, बात यही है कि चाहे हम फूड ग्रेन की बात करें, चाहे कैश क्रॉप्स की बात करें, चाहे फिशरीज की बात करें, सब में ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसान के हाथ से खींच के चीजें कंपनी के हाथों में दे दी। और राजस्थान ने तो कुछ 10-12 साल हो गए तब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक कानून पास किया, असेंबली में बिल पास किया कि जो छोटे छोटे किसान हैं वो अपनी जमीन को कॉन्ट्रैक्ट में 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, 25 साल के लिए कंपनियों को दे सकते हैं और वो प्रोडक्शन करेंगे। अब यदि किसान अपना खुद तो प्रोडक्शन कर नहीं सकता है, वो कंपनी को देगा, तो 25 साल में वो जमीन खराब करके फिर उसमें कुछ प्रोडक्शन होगा ही, कुछ उत्पादन होगा नहीं उसमें, और फिर किसान के लिए कुछ नहीं बचेगा, और उसको जो उसके एवज में मिल रहा है उससे उसकी जिंदगी नहीं चल पाए। तो एक तरीके से बहुत ही बहुत जो बुरा हुआ है किसानों के साथ, और छोटे और मझोले और लैंडलेस जो किसान हैं उनके लिए हम एक तरीके से कहें इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और क्योंकि हम लगातार देखते जा रहे हैं, इतनी सारी चीजें बढ़ी हैं, जो लाल सिंह जी ने कहा वो मैं दोहराना नहीं चाहता। और उसके साथ साथ इनपुट कॉस्ट के साथ साथ बेसिकली हमारा जो ढांचा है, जो यदि हम फूड ग्रेन्स के लिए देखें या कैश क्रॉप्स के लिए देखें, उन सब में ही चाहे वो स्टोरेज की कैपेसिटी हो, प्रोक्योरमेंट हो, ये जो सारी चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं किसानों के पास में थोड़ा भी होता है, बहुत ज्यादा नहीं है उनके पास, वो प्रोक्योर नहीं कर पाते हैं, वो चीजें खराब होती हैं। और सरकारें आज तक प्रोक्योरमेंट का जो पूरा सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा सिस्टम है, एक जगह जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है उसको वहां से ले जाके वो कहीं दूसरी जगह 500 किलोमीटर दूर उसको प्रोक्योर करते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा बढ़ता जाता है। तो बेसिकली लोकली जो एक तरीके से गोदाम बनाए जाने चाहिए थे, वो सब नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्लानिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है किसी भी चीज का, तो प्लानिंग उस तरीके से नहीं हो रही है कि जो चीज जहां पे पैदा हो रहा है उसके लिए स्टोरेज, उसके लिए मार्केट, ये जो सारी चीजें हैं वो वहीं पे बनाई जाए। तो सरकार इस तरीके से करती है कि खरीदती भी है और एमएसपी पे भी खरीदती है। तो दूसरा ये भी हुआ है कि जो मझोले किसान उसमें अपना पूरा समय लगाते हैं, उनको शायद जो मजदूरी है, ये एक जरूर हुआ है ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद मुझे लगता है, क्योंकि किसानों और मजदूरों का जो लड़ाई
पूरे टाइम जो चलता रहता है नॉर्थ इंडिया में, किसान चाहते हैं कि कम से कम में मजदूर मिल जाए, और मजदूर चाहते हैं कि उनका एक मजदूरी बढ़े उनको। और मनरेगा जब से आया है तब से थोड़ा एक बार्गेनिंग पावर उनका बढ़ा है, मजदूरी का एक बार्गेनिंग पावर बढ़ा है, लेकिन वो लड़ाई लगातार चलता रहा है और चलता रह रहा है। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद जब प्रोडक्शन बढ़ा तो थोड़ा मजदूरी में एक अंतर आया है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन एक अंतर आया है। और किसान को भी कहीं ना कहीं ये समझने की आवश्यकता है बेसिकली, जो बाकी जो कॉस्ट बढ़ रहे हैं, सारे कॉस्ट जो बढ़ रहे हैं, किसी भी चीज को यदि हम कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा दूसरे कॉस्ट बढ़ गए हैं, लेकिन किसान की फसल का जो मूल्य है वो एक तरीके से वो नहीं बढ़ा, और उसकी वजह से खेतीहर जो मजदूर है वो वहीं को वहीं टिके हुए हैं, क्योंकि उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही है। और बड़ी तादाद में हम देखें, कहीं 57%, कहीं 62% लोग आज भी कहीं ना कहीं खेती में एंगेज्ड है, अलग अलग तरीकों से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीकों से। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा एक हिस्सा है खेती। और दूसरा मुझे ये लगता है कि बाकी जो सेक्टर्स हैं उन पर बहुत ध्यान सरकारों का जा रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर जिसमें कि बड़ी तादाद में लोग एंगेज हैं, अपना आजीविका चला रहे हैं, उसी से जीवित रह रहे हैं, उसके ऊपर या तो ध्यान नहीं है, और ध्यान है थोड़ा बहुत जो कुछ भी आता है वो बड़े किसान उसको पूरे चीजों को खा जाते हैं, और छोटे और मझोले किसानों तक पहुंचना चीजों का मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि चाहे आप कुछ भी सब्सिडी से ही ले लें, हम सरकार की सब्सिडियों को भी लें तो वो उस तरीके से बनाई हुई है, क्योंकि योजनाएं भी ऐसे बनाई है कि बड़े किसानों को उसका फायदा मिलेगा। छोटे किसान ट्रैक्टर खरीदेंगे ही नहीं, उसके इक्विपमेंट खरीदेंगे ही नहीं, तो वो सब्सिडी उनके काम आ ही नहीं सकती है। तो सब्सिडी उनको मिलना चाहिए कि भाई आपको जो ये जो आप ट्रैक्टर से जो आपको काम कराना है उस पर हेक्टेयर पर बीघा या जो भी है वो सब्सिडी उस तरीके से मिले, तो हर किसान में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे उसके पास इक्विपमेंट किराए का हो या उसने खुद का खरीदा हुआ हो। तो ये जो सारी चीजें हैं मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पे प्लानिंग नहीं है किसान के लिए, और किसान में भी विशेष रूप में मुझे लगता है कि जो मार्जिनल फार्मर हैं, स्मॉल फार्मर हैं और लैंडलेस फार्मर हैं, उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। और अभी लेटेस्ट जो हो रहा है, बेसिकली मनरेगा में कुछ पैसा डाला जा रहा है, अभी कह रहे हैं कि आप खेती किसानी में किसान जो खेती में काम हो रहा है वहां मनरेगा से मजदूर दिए जाएंगे। तो एक तरीके से आप चाहते हो कि जो मजदूर हैं उनको आप किसान के यहाँ एक तरीके से गुलामी करने के लिए आप भेज दो, क्योंकि जब तक वो सिग्नेचर नहीं करेंगे, क्या व्यवस्था है उसका कि किसने कितना काम किया, तो वो दे रहे हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप ठीक से नहीं कर रहे हो। अभी चर्चा ये चल रहा है सेंटर के लेवल पे कि वाटर बॉडीज पानी में कैसे पानी की वाटर बॉडीज कैसे बने मनरेगा के अंतर्गत, और कैसे खेती और किसानी को हल किया जा सकता है। तो खेती किसानी में जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी कोऑपरेटिव कम्युनिटी मिलके फार्मिंग कर सकती है, वो सारी चीजों के बारे में सोचा जा सकता है और उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन वो सरकारें नहीं कर रही हैं। तो मुझे लगता है 4 बहुत मुख्य बिंदु हैं। किसानों की कोई भी समस्या मुझे लगता है बिना जमीन के डिस्ट्रीब्यूशन के और सरकार के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के, जो भी उसमें पैसा लगाया जा रहा है उसमें। और तीसरी बहुत मुख्य चीज है कि प्लानिंग का जो पार्ट है सरकार के स्तर पे, चाहे वो किसी ग्राम पंचायत से लेकर के और लोकसभा तक हम कहें, संसद तक कहें, वो प्लानिंग बहुत ही खराब है। तो प्लानिंग को ठीक करना है हमें, बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। और एक तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसी चीजें ला करके सरकार ने कुछ एक तबके को फायदा पहुंचाया, बाकी का जो तबका है वो एक तरीके से डूबता गया और बुरी स्थिति में चला गया। तो ये जो सारी चीजें हुई हैं, मुझे लगता है कुछ सवाल होंगे तो हम वो सवाल और ले लेंगे। वैसे तो कहने को तो और बहुत सारी चीजें हैं जिस तरीके से। मुकेश जी सॉरी मैं आपको एक चीज हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, एक चीज बेसिकली जो सबसे खतरनाक हो रहा है कि ज्यादा वाटर बॉडीज है नहीं, बड़े तालाब डैम है नहीं नॉर्थ इंडिया में, और है भी कुछ का हुआ है क्योंकि राजस्थान में पहले डेजर्ट था, अभी इंदिरा गांधी कैनाल आया है तो एक उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन दूसरे जो इलाके हैं, हिस्से हैं, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, उनमें ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला गया तो पीने की स्थितियां भी बहुत खराब हो गई। पीने का पानी नहीं है, फसलों के लिए पानी कहाँ से लाएंगे? आपके पास जमीन 100 बीघा रहे भले ही किसी के पास, लेकिन खाने के लिए वो अनाज पैदा नहीं कर पाएंगे और पूरा पानी का इतना क्राइसिस हो जाएगा कि जिंदगी ही बहुत बुरी स्थिति में फंस जाएगी। तो ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा रहा है एक तरीके से, तो उसके बारे में कोई सोच समझ सरकारों का नहीं है। वो भी एक
इम्पोर्टेंट पॉइंट है मुझे लगता है किसानों के लिए। थैंक यू। Thank you, Mukesh ji. Before we quickly move over to our third speaker, so I think there are a couple of commonalities that are coming up. One is obviously that both occupations before the revolutions came along were zero investment occupations. And therefore, investing has meant that farmers have had to take inputs. And the moment the inputs have started, there has been informal credit and power relations through that have come in. Even in Debashish's village, it's very clear that retailers are charging abnormal sums of money over maximum retail price to the shrimp farmers as way of informal credit, as opposed to, and alongside informal proper mahajans also giving very high 36 to 48% credit rates. I think there is definitely one thing that I want to highlight before we move to Sujata, which is that Green Revolution, Blue Revolution, and what has been said so far has clearly created the idea that there are multiple classes and castes operating within the village unit in the way the state interacts with society in implementing these schemes. And therefore, Sujata's work with quarrying and displacement and the state's enclosure of the commons and some of the other aspects of state and development, landlessness, particularly landlessness and land redistribution from a caste angle, becomes really important. So Sujata, please, you have about 15 to 20 minutes. So please speak to us about the impact of these forms of extractive development from a caste and class lens. Yeah, thank you, Siddharth. It's really interesting, but I am stuck up with the Blue Revolution and Green Revolution. I mean, what are these revolutions and who coined and for whom? I always wonder when I hear about the revolution as a term, because Dalits from lower caste perspective, these revolutions have to do nothing, and they're still like, as you see the as and when political regimes changes and the vulnerability is also increasing, the kind of atrocities we are seeing done. So now land is always seen by the state as a commodity, but whereas our experience is it is also a social status, it is also a culture, it is also something to do with the relationships of one group to another, one caste to another. So that is actually that always misses in the policy level making. So I'll tell you that Telangana is the 29th new state with a very long history, and we also called it as a land of revolution. And again, this revolutionary land has nothing to do with the small and marginal farmers. Again, I say that the definition of small marginal farmers, who are these? And we never talk about who are these people. As long as we don't talk about who are these, we are not going to talk about the social status of certain people and the livelihoods and attached. Suppose I'll give you my example of our state. Telangana is it says that it's a land, it's a developing state, and we are going fast. And if you see the last 1 year, almost all international business awards have been given to our chief minister or his son or whoever it is. So the development is always defined by them, not by the people or by the people who are involved in it, stakeholders or whatever. So this development for us is land mining, coal mining, quarrying, and sand mining, and also n number of road highway projects and some project. When I'm really worried about this project and developmental projects. So development is always seen as thanks to our economists that it is destruction mostly. So destruction of lands, resources, natural resources, because you need
you need a big dam for the development, you need a big road for the development to be seen. So always it is a distraction. So in our place, I work in Karimnagar, again a land of revolution. So this this district is basically coal mining state district, and also majority land sand mining, and also now all the projects are coming up. Water multinational projects are also there. So I started working on. I simply started being a nature lover. I simply started on the quarrying issue. That is the interesting thing. Quarrying versus environmental issues, because a big hillock is destroyed, and there are so many wild bears. This district is also very famous for the wild bears. Then I was very fancy about the animals and all. So as I entered in that perspective, I saw so many other angles, the economy and the livelihoods and the the lower caste relationship to these common properties, because these hillocks are always into the common properties. So then we started giving representation and everything. And I also have come across the definition of mining and minerals. If it is a big coal mining, we'll say there is environmental impact assessment, and there is government people come in, and all sorts of acts we have. But when you say quarrying, it is just a person comes and he gives an application, and there's a huge subsidy from the government, and that quarrying is however deep you go into the 200 meters and 300 meters, but still we call it a quarrying, because it comes under minor minerals, not a major minerals. And that is where we started digging into the legal issues. I'm the one holding the papers and running around Delhi and Green Tribunal and all. And people say, no, it won't come under the forest, so it will not come under the Green Tribunal. So saying that how our laws and acts also developed and suiting to certain sections, and then because a hillock is suppose around 50 acres, a person can't take 50 acres because it comes into the major minerals. So 5 to 6 people taking to the lease, and say 10 acres, and anyway more than 50 to 60 acres they quarry. So I come to the caste perspectives, because everybody is not a so-called job holders, and we know the employment and livelihood opportunities. In one hillock, if I say one hillock as an example, there are communities who are affected, because if you see the goat rearers and sheep rearers, that is always a rearing in the common properties, because they don't have a land allotted to them for a rearing of the animals and cattle. So they depend upon these public properties. And second, because we don't have a coastal line or a sea or whatever, most of the river ponds are in and around of these hillocks, because the water comes from the hills and there will be a pond, and most of the fishing communities are dependent on the water ponds. The third point is, we have Telangana is known for a taddy. You all know the taddy. The most of these trees are in and around the hillocks, because most of these communities also dependent. And if you see the custard apple, which is we do not have usually the farms for the custard apple. It is always grown on these common properties, where scheduled tribes, most of the nomadic tribes, they pluck and sell. That is a major livelihood which is never reported, and it is done by the women. And also I have narrated firewood is the major also source for these common properties. This as an example I'm showing.
how many communities we have listed out the castes who are dependent on these one single quarrying and represented various political parties or whatever, and it have never worked because it is always seen that a quarrying is for the development and the stone or the sand or the crushing is important for the construction. So when I say that if single quarry can dismantle so many communities' livelihoods, and which was never reported and which was never have taken taken into the consideration, how we can see any kind of a revolution, probably blue or a green or a red or whatever, to related to whom? That is number one. So when the Nandigram is going on, and perhaps is the only SEZ in Telangana was going on. In fact, I used to fight with a reporter at that time, saying that there's no bloodshed, there's no movements of SEZs in Telangana. The definition of the reporter comparing to Nandigram and Telangana, which is very, in a big way, the movement is going on, and she says there is no bloodshed, so we don't call it as a movement. So we are also defining the movements in terms of bloodsheds and in terms of people and police involved. Of course, police and arrests are still involved. I'm also involved, targeted anyway. So I'm saying when you don't talk about the caste, but still talking about the government terminology of small, big farmers, people, generalizing the people, it is very difficult, because even in the big story, which in the talk I narrated, in these development models, in these revolutionary models, one whole section is deleted. The Dalits or the tribals anyway, even forests we are not talking about these days. When we talk about the fisheries, are we talking about targeting about one particular community and their development, or if we talk about in that sense, we have thousands of castes and thousands of professions which are going on. So I'll tell you, the Telangana government has come up with encouraging certain particular castes, like giving goats and sheep to the Yadav communities, and fishes to the fishing communities. So this is, anyway, I have never seen the fishing communities or goat, sheep, Yadav communities are becoming into the market, and from my childhood to now, I've never seen people who are rearing sheep or goats or catching fish, doing business, has never into the marketing field, because their whole families and they're still doing. So we are fighting for the livelihoods of the people who wants to be in the villages. So the romanticization of village is not just a village for us, for Dalits, because there is a caste ladder and there is a caste structure in the village, which talks about, which confine the profession of one community to another community. Suppose I'll tell you, when Telangana government started giving fishes, there were many other communities who were, for generations, who were catching fishes in the flowing river waters. Suddenly there was a friction, because all the fishing communities, castes have come into the picture when Telangana government started giving the fishes to the communities, and the other communities who are into the fishing was really jobless, and they lost livelihoods, and they don't know other things, other works also to survive. So when we represented this issue, this government and the local party people said that it is their job, right? It is their job. Then when you are confining one community to one profession or a livelihood, it is very, you are dictating the caste ladder and the structure. So you are strengthening the structure in the name of policies, and I'm not saying that one should not develop those aspects, but
we the lower caste always look for the, the social mobility, right? The mobility of education, employment, jobs, which are not there, of course. But government is, instead of showing the opportunities, they are showing, look, you are you are a pig rearer and you are a so and so task person, you better do this job. So government should do that, because the development is, if the fisherman wants fishes, then he should do that, but not at the cost of closing the other revenues, right? We are asking for a better education, we are asking for a better employment opportunities, we are asking equal opportunities. So the development is, and the village structure is, in practical sense, divided among the castes with so many inequalities, and the professions, which is never considered by the development or policy makers, developers. The revolution also, that blue or green or whatever revolution, is never considered this revolution. I'll tell you the who are these municipal workers today, and the sanitation workers today, and the scavenging communities are today. They are confined. Look, you are a scheduled caste person, you better be there, you better in this profession. But if a scheduled caste person want to do a fishing, if somebody wants to do a weaving, or somebody wants to do some other things, are we ready to allow them to do or not? So if it is not, can we call it as a development? When I can't choose my work or whatever. So I conclude, when we were doing the SEZ struggle in Telangana, when I'm also coordinating the Polepalli SEZ, all the other, everybody lost the land, but the only one section fought for the land, that is the Dalits, because everybody else got some compensation, because they have patta lands and whatever lands, and they have compromised, or they also have a lobby with the governments or whatever. Why this particular community have fought? Because that is assigned lands. So in this country, all this one section of scheduled caste and tribes are always assigned. They were never owner, and they don't own anything, and their lands can be grabbed anytime. And that assigning itself is a problem again, because the small piece of land, whether it is assigned or a government, they lost it in the name of SEZ, in the name of quarrying, in the name of anything. Once a particular community lost the land, they have lost everything. So a profession is designated to the caste, and the caste again is given in particular importance, a status in the society. Then the whole picture is different. If I am a teacher, my status is different. If I'm a scavenger or a sweeper, my status is different. So what I am trying to tell you today, the policies which we are making are excluding majority of the people who are so-called landless. I call it that the lower communities, and we never ever consider that how particular certain sections are going to live. Second, the policy, okay, fine, I understand that they want to strengthen and development the caste-based occupations, but your mining, your quarrying, your SEZs, your multinational programs are destroying n number of caste livelihoods who are again dependent on the land. So the bottom line is, if you don't give land to the marginalized or to the people who are in the villages, they always end up bargaining for subsidies, pensions, loans, then sustainability and empowerment. We have to forget those terminology again. There is no empowerment, there is no sustainability, and also, okay.
So the land and ये निरंतर होता है. Land distribution always is a nirantar, and it's a regular process for any government because they never ever complete. Telangana government has come up 4 acres to the Dalits and Adivasis and whatever. It has never done, and till date they're still searching for the land, and not even 5% or 10% have come up. So I conclude saying that the village structure has a caste in it, as a caste inequalities and gender inequalities, and if you don't take it as a unit when you design a policies, and if you don't consider the structures, and but from top to bottom you impose the programs, and it is very difficult for us to even survive. Now we don't know where to start the battle for the landless and majority of the landless. When I request everybody here, when you talk about the landless, I would add who are these landless. Definitely we have to add that. When you talk about the small marginal farmers, then who are these small and marginal farmers, and what is their role in the whole economy and the development? So my experience is I totally failed. We failed to bring these issues into the forefront because in the name of development, in the name of policy making, these questions have remained to the non-developmental issues and social issues and identity struggles kind of thing, but which are very much related to the policy making. Yeah, I don't know if there are questions I can, but I'm done, Sita. Thank you so much, Sujata. So just to kind of, I know we've gone over time, we've got only half an hour more for this session, so would like to open up to questions. We already have some. But I think just to draw on a few things that all of the speakers have touched upon, I think when we were planning for this session, I think if we are reimagining the future, just like if we are talking about whose revolution, I think it's also important to say whose future are we reimagining. And in this panel in itself, we've got 4 different social categories: me as a Brahmin man, a Dalit activist, a farmer, a fish worker, and each one are giving versions of their reimagination, or at least have ideas of it. And therefore, I think it's important that maybe we don't have answers to all the questions that we have. And a good way to reimagine the future would be to leave with questions as well. So I'm just going to leave some of these questions that we can try and answer over the next half an hour, but most likely it will be a process of trying to get to them. So sorry, can you hear me? Yeah. Okay, wait. My video has swapped. Okay, there we are. So I think for one thing, Sujata is talking about social mobility and options. And on the other hand, our other 2 speakers are talking about having self decision-making power and autonomy given to retain professions that they are in, whether that is fishing and farming, especially for people who have been excluded by the revolutionary-led process of increasing food productivity. So I think there is that idea of how one perceives and looks at the state, and therefore each social group within the village would look at the state as having different demands to be made as well. And another question that arises, somebody has already asked it, is that, for example, on the West Coast, Sujata, this is maybe a question from me to you. On the West Coast, we have the fishing communities which have had some amount of social mobility. So, for example, in Goa, we have the Khadvi community, which has traditionally been the OBC fishing community, which has now become boat owners, and they employ a lot of Central India's scheduled tribe workers on their boats. And there is a clear demarcation of who's the owner and who's not the owner. And on the other side, in, let's say, Debashish's village, there are peasants who are also fishers, and then there are caste fishers who do not own land. And therefore, there is a diversity in the aspect of caste and profession in a manner as well. And therefore, if we have one centralized policy like the Pradhan Mantri Matsya Sampad Yojana, which incidentally
at the moment has been implemented even in Rajasthan. While I was preparing for the moderation, I went to the Department of Fisheries, and we are seeing that the 4,20,000 hectares or the other area which is available is going to be put under this kind of investment-led development. So what does it mean maybe in reimagining the future in terms of, do we look at very specific geographies and look at collaborations and imaginations being there? Or do we try and make this attempt to reach out nationally and across sectors to be able to move things together, especially when there is such a big diversity in maybe markers of caste and profession? And with that, it's open for comments, but that's a question that I had. It again doesn't have to be answered. But if there are any other questions or anybody else would like to speak, I think we can definitely open it up for that discussion for the next half an hour. I have a few questions. Some of them have been replied to. But in the meantime, would any of the speakers like to go for a second round of comments, depending on what they've heard from the other people, for maybe 3 to 5 minutes, just to give thoughts about what they've heard? Debashish Da, Lal Singh Ji, Mukesh Ji, would you all like to come in and say anything at all? Yeah, see, if you go to the coastal lines, and the majority, the major livelihood production is the fishing. And you can obviously see, because the communities are not much. Maybe, I don't know, the coastal line as taken as a village or as a structure. And I'm also not sure one has any study of these different communities involved, and at what level they are involved and what stages they are involved. If it's not involved, why? Again, because we have a fisheries sanghams, associations here. So majority of them are obviously to the poor fishing communities, castes which are there, but who other communities wants to do that profession, they have to again register in the same caste people, even if they are not involved, because most of the politicians are into it, most of the big corporate, other software employees are into it. They have registered, but they are not into it. So I wonder that, and the coastal line experiences perhaps is different. See, when we are talking about fisheries and the land and the diversity of land grabbing and all, we talk about and the sustainability and the natural resources, but then the communities or castes which are losing the employment. I don't know whether I'm making it sense. So we focus on the major environmental protection, then the struggles which the people who are dependent on it. So when I say that so many Dalits are losing land, nobody will come. But when I say, I learned this language over a struggle of a decade. When I say that, oh, there's an environmental concern, then everybody will join hand. Various reasons again. So I wish to see if there is a developed communities, and who are those and how long, and what is the status as a stakeholder in the policy making, whether in such lower caste communities are involved, if they are involved, and what level. Yeah, it's a comment. Thank you. I'm just going to take a question from Mr. Vasant Mysormat, who says that on misuse of available scarce land for cultivation of deadly tobacco crop is killing one person every 8 seconds. Farmers are trapped in loans and they have become eternal debtors of banks and private lenders. More than 30 tobacco farmers have committed suicide due to losses. Why not provide alternative crops to farmers and help people to live a healthy life? I'm going to pose this question to Mukesh and Lal Singh ji. यहाँ पे सवाल आया है कि टोबैको का जो फार्मिंग होता है उसके वजह से जमीन पे भी और किसानों पर भी बहुत असर होता है. तो क्यों ना हम जो टोबैको फार्मिंग में किसान हैं उनको कोई अलग क्रॉप दें और ये अलग क्रॉप के वजह से उनकी जीविका सुधर जाए या ठीक हो जाए. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सवाल कि ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, येलो रेवोल्यूशन हो गया,
अब और भी कोई रेवोल्यूशन में कोई नया क्रॉप आएगा, जैसे अभी टोबैको छोड़ दीजिए, चलिए बोलते हैं मछली उगा लीजिए आपके जमीन में। तो ये जो प्रक्रिया है एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप बढ़ाने का, इसमें क्या इनका सवाल जो है टोबैको से निकलने का, तो उसमें क्या कर सकते हैं? मगर वैसे ही हम किसानों को कब तक कहते रहेंगे कि वर्ल्ड मार्केट में इसका डिमांड है तो आप ये क्रॉप उगाइए? ये कोई जवाब है कि जब नष्ट हो गई है जमीन या नष्ट हो गई है वहां के पर्यावरण, तो हम कहें कि और एक क्रॉप ले लीजिए, उससे आपका ठीक हो जाएगा? तो ये प्रक्रिया करने से क्या असर होता है छोटे फार्मर्स पे? देखिए, इस तरीके का सरकार ने पहले वो ये तो अंग्रेजी गवर्नमेंट भी कह चुकी थी कि आपको नील बोना चाहिए, जबकि नील हमारे लिए कुछ काम की नहीं थी। वो सिर्फ उनके कपड़ों के लिए या उद्योग में काम आने के लिए वो यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और उससे बहुत लॉस हुआ है। तो तंबाकू भी किसान की जरूरत नहीं है और नया भी उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान को अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड छोड़ दीजिए, वो क्या करना चाहता है, कैसे उनकी आमदनी बढ़ेगी या घटेगी, उनको सोचने तो सरकार को सिर्फ एक ही करना चाहिए कि अभी मुकेश जी ने भी बताया कि जिस तरीके से आप उद्योग जगत को सब्सिडाइज करते हैं, सब्सिडी देते हैं, किसानों को सब्सिडी देना ही होगा। अगर उन्हें जो फसल के दाम अगर कम रखने हैं तो सब्सिडाइज करना पड़ेगा। अबे जैसे डीजल को ले लीजिए, अगर डीजल 100 रुपए लीटर बिकेगा तो नेचुरली फसल को बहुत लॉस होगा, किसान को बहुत लॉस होगा, क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ने के बजाय घटेगी, क्योंकि खर्च जब बढ़ता है और आमदनी उतनी ही रहती है तो किसान लॉस में जाएगा। इसलिए क्यों नहीं जब वो उद्योग जगत को सब्सिडी देते हैं, किसानों को भी उससे ज्यादा सब्सिडी देना चाहिए, क्योंकि देश वही मजबूत है जिसके पास खाने पीने के लिए पर्याप्त सामग्री है। यदि हमारे पास 5 साल की खाने पीने की सामग्री है तो कितने भी लॉकडाउन लग जाए, कितना भी डिमोनेटाइजेशन हो जाए, कितना भी जीएसटी बढ़ जाए, किसान जब पैदावार करेगा तो देश बचेगा। और जिनके पास खाने को कुछ नहीं है वो कितना भी ऊपर चढ़ जाए लेकिन अंत में उन्हें डूबना ही है। अभी मैं बताऊं, अभी जब लॉकडाउन हुआ और ये कोरोना का टाइम चल रहा है, ये देश सरकार की वजह से नहीं बचा है। ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए हम बच गए हैं, ये मैं मानता हूं। क्योंकि अभी तक जो किसान है, छोटे किसान है या बड़े किसान है, उनको बाकी चीजें की जरूरत नहीं है। हमारे पास खाना है, पीना है, राशन है, इसलिए हम बच गए हैं। ये सरकारों की वजह से कुछ नहीं बचा है। वो सरकार 10% लोगों तक भी नहीं पहुंच पाई। अगर रूरल एरियाज में आप देखें, कुछ भी मदद नहीं मिली सरकार की तरफ से। ये हम बचे हैं किसानी की वजह से, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ये मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, ये जो लाल सिंह जी कह रहे हैं, मैं भी बेसिकली उन्होंने भी लिखा था कि ये एक तरीके का ट्रैप है और ये पैदा किया जाता है। ये केवल तंबाकू नहीं है, दूसरी अन्य फसलों में भी इसी तरीके से एक ट्रैप जाल में किसानों को फंसाया जाता है कि आप ये पैदा करेंगे, उसका अच्छा भाव मिलेगा। उनका जो कैपिटल है वो कहीं से कर्जा लेंगे, वो कैपिटल से वापस उसका ब्याज नहीं चुका पाएंगे। ये एक तरीके से वो फंसते जाते हैं इन सारी चीजों में। तो मुझे लगता है कि उसका ऑल्टरनेट जो उस इलाके में, उस एरिया में ठीक हो सकता है और जो वास्तव में जरूरी है समाज के लिए, क्योंकि तंबाकू जरूरी नहीं है समाज के लिए जीने के लिए। एक तो ये चीज है। दूसरा मैं एक कहना चाहता था इससे पहले भी कि जिस तरीके का जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन है और जिस एक तरीके से हम देखते हैं कि दलित तो बहुत बड़ी तादाद में लैंडलेस हैं पूरे देश में ही, इंक्लूडिंग राजस्थान, लेकिन आदिवासियों के पास जो जमीनें हैं और आदिवासियों के पास उसके लिए कानून भी बना दिया उन्होंने, लेकिन वास्तव में वो किसानों को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। और उसमें किसानों में भी जो एक तरीके से वंचित समुदाय है, चाहे वो दलित हैं चाहे वो आदिवासी हैं, जो जमीन पड़ी हुई है बहुत सारी जिसपे खेती हो सकती है, ना जिसपे कोई फॉरेस्ट है, उसको ना तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो कंपनियों को जा रही है। दूसरी है कि आदिवासियों के पास जमीन है, खेती योग्य जमीन है, लेकिन उसका पट्टा उनको नहीं मिल रहा है। तो किस तरीके से सरकारें एक तरीके से उनको जो और वंचित हैं उनको वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो एक बड़ा मुझे लगता है सवाल है। शुक्रिया। एक सवाल आया था स्टार्टिंग में, हाउ मेनी पीपल एम्प्लॉयड इन फिशरीज इंडस्ट्री?
and impacted financially during COVID-19? Can anybody give approx figure? तो इसका जवाब देवाशीष दाई आप देना चाहेंगे कि जवाब इसका? नहीं, मैं इसको तो मैं दे रहा हूँ और साथ साथ मैं एक जो अल्टरनेटिव की बात आई है, मैं उसमें से दो चीज रखना चाहता हूँ कि हमारे फिशिंग सेक्टर में यहाँ पे बहुत एक कॉमन लैंड था जो मंदारमनी मंदारमनी के पास, मंदारमनी जो टूरिज्म प्रोजेक्ट है उसके पास, उसमें से 100 हेक्टेयर के ऊपर जमीन था जहां पे हाई टाइड और लो टाइड दो ही आता था। उसमें से गांव का 1000 माँ बहनें या दादा भाई सब लोग मिलके वहीं पे हाई टाइड के टाइम पे मछली पकड़ने के लिए जो ट्रेडिशनल नेट है जाते थे। आधा केजी से लेकर 10 केजी तक लोगों को मछली ऐसे ही मिलता था। तो वहीं पे क्या किया, आज से 10 साल पहले वहीं पे वर्ल्ड बैंक की एक प्रोजेक्ट आया, इंटेंसिव प्रॉन एक्वाकल्चर, टाइगर प्रॉन उगाने का। पूरी जमीन को बांध कर दिया, पुकुर जैसा बना दिया और उसमें से हाई टाइड और लो टाइड के आने में बाधा सृष्टि किया। जब उस टाइम पे फिशरमैन ने उसके खिलाफ बोला तो बोला कि ये बहुत बड़ा देश के लिए, स्टेट के लिए और यहाँ का जो लाइवलीहुड के लिए बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है। तो आज का स्थिति आप देखेंगे वहीं पे वो लैंड पड़े हुए हैं, हाई टाइड लो टाइड तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं इसलिए बता रहा था कि कितना इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमारे लोगों के पास जहां पे नेचुरल रिसोर्स खुद उगलता था तो उनको धकल के बाहर निकलकर उनको अल्टरनेटिव के नाम पे उनकी ट्रेडिशनल और उनको नेचुरल रिसोर्स को छीन लिया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मैं और भी एक बहुत सारे बरसाती नाला है, बहुत सारे क्रीक है जहां तक हाई टाइड लो टाइड बहुत दूर तक जाते हैं, गांव के बहुत दूर तक जाते थे। अभी आप देखेंगे कि ये सब जहां पे कल्टीवेट लैंड था, पैडी लैंड था, उसको छीनकर मछली उगलने का और ऐसे प्रॉन उगलने का अभी काम चल रहा है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो नेचुरल बेस जो फिशरमैन जो काम होता था वो बंद हो रहा है और जो कल्टीवेट जो अभी उगल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, उनके जो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, फीड और जो पॉइजन, जो पोल्यूटेड जो पानी वो क्रीक, बरसाती नाला और सब मिलके समुद्र नदी में मिल रहा है। तो इसके लिए भी बहुत सारे ट्रेडिशनल और सस्टेनेबल फिशरीज के ऊपर बहुत बड़ा एक धक्का है। अभी सिचुएशन जो है, जो डेटा अभी दिया गया है, मैं उसमें अभी करीबन इनलैंड और फिशिंग सेक्टर में अभी जो सेक्टर्स हैं उसमें से हम देख रहे थे कि अभी हमारे वेस्ट बंगाल में अभी 32 लाख है और अभी ऑल ओवर इंडिया पे आप देखेंगे तो उसमें से पॉपुलेशन अभी 2 करोड़ फिशरमैन पॉपुलेशन जो है 3 करोड़ के आसपास, जो डेटा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं इनलैंड और मेरीन 2 सेक्टर में, अभी इतना ही है। और उसमें से अभी का जो सिचुएशन है जो ट्रेडिशनल है, क्योंकि अभी वेस्ट कोस्ट में बैन चल रहा है और ईस्ट कोस्ट में अभी खुल दिया गया है जून से, 15 जून से। तो अभी सिचुएशन यही है कि जो स्मॉल स्केल फिशरमैन हैं, जो मोटे मोटे स्तर पे जो ड्राई फिश करते हैं, उनका अभी सीजन अभी तक चालू नहीं हुआ। वो वेस्ट बंगाल में अभी चालू होगा सितंबर से, लेकिन ईस्ट कोस्ट में आप देखेंगे अभी चालू हो गया जो फिशिंग, जो गिल नेटर्स हैं, जो बैग नेटर्स, फिक्स बैग नेटर्स हैं, वो अभी चालू हो गया, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। और मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट से मैं कह सकता हूं जो मेकानाइज सेक्टर हार्बर बेस्ड जो फिशरमैन हैं उनकी स्थिति बहुत कम है, स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि अभी उनमें बहुत सारे लोगों को कोविड के कारण, क्योंकि वो सब एसओपी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स जो है वो गाइडलाइन ठीक तरीके से प्रोसीड्यूर नहीं मेंटेन नहीं कर पा रहा है और करना भी मुश्किल है। तो इसके कारण उनके लिए भी अभी प्रॉब्लम अभी फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि कोविड बहुत सारे लोगों को अटैक कर रहा है। मैं ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जो दीघा फिशिंग हार्बर्स हैं, जो सबसे एशिया का सबसे बड़ा जो ऑक्शन सेंटर है, तो वहीं से अभी ये रिपोर्ट आ रहा है। तो लोग, बहुत सारे लोग उनसे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और ट्रेडिशनल मोटे मोटे स्तर पे जो गिल नेटर्स हैं वो अभी चालू नहीं कर पाया, क्योंकि अभी यहाँ पे जो ईस्ट कोस्ट में अभी बारिश का भी सीजन चल रहा है। मुकेश जी एक तब तक सवाल एक पॉइंट लिख रहे हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए मुकेश जी।
हाँ, तो मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा प्रधानमंत्री फसल बीमा है, शायद ये भी बहुत प्रचारित प्रसारित किया गया है पूरे देश पे, और ये हमने देखा है, मैंने खुद ने मेरे घर में भी देखा है, और राजस्थान का हमने एक स्टडी भी यहाँ देखा। एक हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जो पूरा इंदिरा गांधी कैनाल, और वहाँ बड़े पैमाने पे खेती होती है। बेसिकली जितना लास्ट टू लास्ट ईयर 107 करोड़ प्रीमियम था, और केवल क्लेम पास हुए थे 5 करोड़ के। तो एक तरीके से ये, और इस साल भी राजस्थान में ओलावृष्टि हुई, फसल खराब हो गई, हर साल हो रही है, दूसरे राज्यों में भी हो रही होगी, लेकिन क्लेम नहीं मिलता है। और उसमें इतने सारे कंडीशंस डाल दिए हैं। जितने भी किसान हैं जो जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, उनका तो ऑटो है, चाहे उनकी मर्जी हो नहीं हो, इस साल जरूर उसमें ये आने लगा है कि आप चूज कर सकते हैं। अभी तक पिछले 3 सालों से जो चल रहा था उसमें कोई चूज करने का भी ऑप्शन नहीं था। तो उसमें जो छोटे किसान हैं, दूसरा ये है कि उसमें लगभग बहुत कम 2 हेक्टेयर का ही बीमा होता है, चाहे आपके पास कितना ही जमीन है। वो ठीक भी है कि आपका बहुत फसल भी खराब हो गया तो कुछ का तो कम से कम कुछ मिल जाएगा। तो एक तरीके से जो बीमा कंपनीज हैं, प्राइवेट हो सरकारी तो कितना कर पा रही मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट बीमा कंपनीज इन्वॉल्व हैं, और इतना सारा पैसा किसानों से प्रीमियम के रूप में लिया जा रहा है, और बहुत ही एक तरीके से पूरा जाल बन गया है, ट्रैप बन गया है, ऑटोमेटिक हो रहा है, और बहुत किसानों के साथ मुश्किल हो रही है। एक केसीसी पे 5 से 10 हजार रुपए उनके जा रहे हैं प्रीमियम में, कहीं कहीं 20 हजार भी जा रहे हैं, जो उनके लिए एक बड़ा अमाउंट है, और छोटे 2 भी मतलब 1 हेक्टेयर वाले किसानों के लिए। तो ये मुझे लगता है बहुत ही बड़ा ट्रैप है। So just to give a winding up comment, because we are reaching close to time, I know that Sujata has been dealing with something personal and would like to leave at 1 o'clock. So in terms of what we've heard, a few things today, and I just want to reiterate that currently India's fish production is at about 12 million tons. And by 2030, the government wants to triple this almost to 30 million tons, including bringing deep sea tuna fisheries into export markets, but also expanding it along saline and alkaline agrarian lands, but also tanks, ponds, Vular Lake in Kashmir, Loktak Lake in Assam. All of these are going under investment-led intensive forms of fish production. And therefore, the blue revolution, which has so far been something that has been restricted to coastlines, we are seeing an intensive amount of cages, cultures, etc., coming into areas. And I think this relates to Sujata's point and to Mukesh's point. One, about the autonomy of decision making over the lands that you have been traditionally accessing. So you go into insurance, credit cycles that are dictated by certain export-oriented or production-led crops. On the same time, the people who access these water bodies are very much without clear titles or access rights to those waters. So for example, a Jalashaya in Rajasthan, in which intensive production is going to come in under the Pradhan Mantri Matsya Sampad Yojana, very clearly in the policy that is going to accompany it, says that these water bodies will be taken under state management and then leased out so that production can be increased. And what it is essentially saying is something similar to the common hills that Sujata was talking about, but all the social groups that access and common that resource now get that right taken away by the state's policies, and new forms of investment come in. What Debashish is experiencing is exactly those coastal lands and mechanization happening through state policies and investment outside the group that it is meant to target in a manner. And what Mukesh ji and Lal Singh ji have said, that even when those processes come into the actual beneficiaries, which could be farmers, they are geared towards a certain class or caste of farmers who do not have, whose marginalization is kind of reproduced in that manner. So I think when we are talking about reimagining futures, I think we should also talk about some of these caste dynamics of whose land holding, whose access, whose labor. And I think most importantly, in addition to all of it, there is also the class basis of not most important, I was going to say the most important thing is gender, which we'll be speaking about next week, which Ashwati will come in and speak about.
But there is also a clash of the material basis on which all these communities are based. And therefore, where we forge realities of solidarity, but also reimagining futures of food production is somewhere where there is conflict and avenues of cooperation. And I think those are just conversations that we will keep doing. So I would like to say thank you to all our three speakers today. I'm really humbled by having the chance to interact with you for the last 2 hours. My apologies if I have misread or misquoted or not been able to do justice to your thoughts and ideas. And I would just hand over to Ashwati to quickly introduce part 2 of this session. Thank you. Thank you, Siddharth, and the other panelists, and thanks everyone for joining us today. So like I was saying at the beginning of this conversation, this is a 2-part series, and the second one will be talking about modernizing food production responses by women in resistance. Because today we talked about, what Atmanirbharta means for different communities, from fisheries to farmers to marginalized and vulnerable sectors. But then to break it a little more further, to bring in the gender angle, and then look at how struggles, women within struggles also have looked at these things. So we'll have Ajita from Jharkhand, who's associated with Oman Mahila Sangathan, and Magdalene Philomena from Thiradesha Vanita Vedi, and Sri Rekha Sati, who is an academic from Netherlands, joining us, who has covered like land struggles to a great extent. So we hope to see you next Tuesday on the 28th for the second part of this conversation. Thank you.